So today we are going to learn about the basics of AWS. क्या क्या चीजें जो AWS के में जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए. What are the basic things required? Region and availability zone. How many continents are there in the world? So there are 7 continents, right? Just like continent is dividing the whole world into small chunk of land, and in each continent we have independent countries. So each country is working independently. They have their own security, they have their own agriculture and all other things. You can compare region with continent and zone with individual countries. So in Amazon has divided the region or the whole world into nearly 24-25 regions. India is one region, North America is one region, South America is one region, you can say like that. So there are nearly 24 regions across the world, and inside each region there are different availability zones. So you can see these are the regions. The number is given, right? These are the region. In each region there will be multiple availability zone. So what is the significance of the region? So physical location around the world where we cluster the data centers. Each each region consists of multiple isolated, physically separated availability zone within a geographical area. Across the world उन्होंने multiple regions select किए हुए हैं. Okay, there are so many regions. There are nearly 24 plus region around the world. और हर region के अंदर multiple availability zone होते हैं. Okay, multiple availability zone होते हैं just like countries. तो वो क्या होता है, एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, फिजिकली सेपरेटेड रहते हैं. Each availability zone has an independent power, cooling, physical security, and is connected via redundant ultra low latency network. So हर availability zone के पास खुद का पावर सप्लाई, खुद का फिजिकल सिक्योरिटी, कूलिंग सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, and each availability zone is connected with each other within a region with ultra low latency. AWS infrastructure region meets the highest level of security, compliance and data protection. ठीक है, जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योरिटी, कंप्लायंस और डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है. Availability zone. An availability zone is one or more discrete data center, ठीक है, with redundant power, networking and connectivity in a region. So you can see the dotted line. एक रीजन है, इसको एक रीजन मानिए. तो अवेलेबिलिटी जोन, उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं. तो एक रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन होते हैं? 3 और मोर अवेलेबिलिटी जोन. ओके, एक रीजन के अंदर 3 और मोर अवेलेबिलिटी जोन. अब अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं? अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? डेटा सेंटर, एक्चुअल डेटा सेंटर. डेटा सेंटर्स का मतलब सर्वर्स, जहां पे आपके सर्वर रखे हैं उसको हम डेटा सेंटर्स कहते हैं. सो ये डेटा सेंटर है. अब आप देखिए इस डेटा सेंटर में इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई, कूलिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी सब कुछ है इसके पास. तो ये एक अवेलेबिलिटी जोन है. एक अवेलेबिलिटी जोन में फिजिकल सर्वर्स रखे रहते हैं, फिजिकल हार्डवेयर रखे रहते हैं. दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी जोन. डेटा सेंटर मतलब जहाँ पे पूरे कंप्यूटर, पूरे स्टोरेज, जो भी AWS सर्विस दे रहा है, कंप्यूटिंग सर्विस, स्टोरेज सर्विस, वेबसाइट होस्टिंग, सब कुछ, सारा डेटा सेंटर्स एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है या एक डेटा सेंटर्स है यहाँ पे. ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जोन किससे बना होता है? डेटा सेंटर्स से. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं कहता हूँ एक ये डेटा सेंटर है, एक ये डेटा सेंटर है, एक ये डेटा सेंटर है. Availability zone give customers the ability to operate production applications and database that are more highly available, fault tolerant and scalable
then would be possible from a single data center. एक क्वालिटी जोन में डेटा सेंटर्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वो हाईली अवेलेबल। अब हमने एक बात कही थी कल, अगर मेरा मशीन डाउन हो गया तो क्या होगा? तो हमको हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर बनाना है, टोल फॉर एन आर्किटेक्चर बनाना है, वो हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए उसका। तो एक क्वालिटी जोन में ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। Quality zone in a region are connected with a high bandwidth, low latency network over fully redundant dedicated metro fiber providing high throughput, low latency network between the AZs. एक रीजन है, उसके अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन है, ये दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है, ये तीसरा अवेलेबिलिटी जोन है। तीन अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन है जो इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर्स हो गए, बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हैं सबके पास। अब ये जो अवेलेबिलिटी जोन है विद इन अ रीजन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है हम उसमें बात करेंगे, बट एक रीजन के अंदर जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? विथ अल्ट्रा लो लेटेंसी। हाई बैंडविड्थ मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है, लेटेंसी मतलब लेटेंसी मींस डिले। डिले मतलब जब आप कोई वेबसाइट को हिट करते हो उससे आपको कितनी देर में रिस्पॉन्स आता है, चाहे आपकी कितनी भी ज्यादा स्पीड हो पर एक मिनिमम डिले रहेगा ही रहेगा, तो दैट इज अ लेटेंसी। सो अल्ट्रा लो लेटेंसी। रिडंडेंट मतलब बैकअप, डेडिकेट फाइबर, मेट्रो फाइबर। सो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है एक दूसरे से कनेक्टेड है विद अ डेडिकेट मेट्रो फाइबर विथ हाई थ्रूपुट एंड अल्ट्रा लो नेटवर्क लेटेंसीज। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अवेलेबिलिटी जोन है या कौन सा रीजन है, रीजन के अंदर कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी जोन होंगे? तो जनरली लेट्स से इंडिया एक रीजन है, लेट्स से इंडिया एक रीजन है, वहां पे अवेलेबिलिटी जोन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, एक मुंबई में उन्होंने डेटा सेंटर डाला, दूसरा डेटा सेंटर डाला बेंगलोर में, तीसरा डेटा सेंटर डाला दिल्ली में। ठीक है, तीन डेटा सेंटर डाल दिए। ठीक है, तो मुंबई एक अवेलेबिलिटी जोन हो गया, बेंगलोर एक अवेलेबिलिटी जोन हो गया, और दिल्ली एक अवेलेबिलिटी जोन हो गया। अब मुंबई, बेंगलोर, पुणे और दिल्ली, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। सारे सिटीज, ये जो अवेलेबिलिटी जोन हमने सिलेक्ट करे ये काफी दूर है एक दूसरे से। व्हाई वी आर टेकिंग सो मच डिस्टेंस? कि एक अवेलेबिलिटी जोन और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में मीनिंगफुल डिस्टेंस रखा है हमने। अमेज़न कहता है कि अगर कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज या मैन मेड क्लैमिटीज आई, उसके कारण अगर एक अवेलेबिलिटी जोन पे इश्यू आया तो उसका इम्पैक्ट दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे नहीं आना चाहिए। सो अमेज़न कहता है कि जो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं उनके बीच में इतना डिस्टेंस रहना चाहिए जिससे कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज या मैन मेड क्लैमिटीज आते हैं तो उस कारण दूसरा अवेलेबिलिटी जोन पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, नेचुरल क्लैमिटीज, फ्लड, हैवी रेनफॉल के कारण फ्लड आ गया मुंबई में। हर साल एग्जांपल लेते हैं, वाटर लॉगिंग का इशू आता है, डेटा सेंटर्स डाउन हो जाते हैं, पावर सप्लाई कट हो जाता है। एग्री? तो अगर एक डेटा सेंटर में ऐसा हुआ या एक अवेलेबिलिटी जोन में ऐसा हुआ, उसके कारण दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, या पूरा पावर ग्रिड उड़ गया मुंबई का। तो कभी ऐसा सुना है कि अगर मुंबई में इशू है सेम चीज दिल्ली या बैंगलोर में भी हुआ है? या हैवी रेनफॉल हुआ है मुंबई में तो दिल्ली और मुंबई बैंगलोर में भी पैरेलली हुआ है। सो हम जो अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करते हैं वो ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि जो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से मीनिंगफुल डिस्टेंस पे हो। अब ये बताइए, एक डेटा सेंटर मुंबई में है, दूसरा डेटा सेंटर नवी मुंबई में है या थाने में है। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर्स। एक मुंबई में है डेटा सेंटर, दूसरा डेटा सेंटर कहाँ पे है? नवी मुंबई में। तो ये एक ही अवेलेबिलिटी जोन होगा या डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन बोलूं उनको? अब मुंबई और नवी मुंबई डिस्टेंस कितना है? बहुत कम। हो सकता है ना कि अगर पावर ग्रिड उड़ गया हो तो मुंबई का उड़ा तो साथ में नवी मुंबई का भी उड़ गया हो, या फ्लड आया है, मुंबई और नवी मुंबई में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो नवी मुंबई में फ्लड आ सकता है। तो
मुंबई में अगर डेटा सेंटर रखा है और एक नवी मुंबई में रखा है, तो इनको हम एक ही अवेलेबिलिटी जोन कंसिडर करेंगे, क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत कम है। आपके डेटा सेंटर्स एक जरूरी नहीं कि एक ही लोकेशन पे हो, पास में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक डेटा सेंटर एक लोकेशन पे है और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे दूसरा डेटा सेंटर है, पर उसके नियर बाई है। तो अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? इट्स अ फिजिकल डेटा सेंटर्स। Availability zones are physically separated by a meaningful distance, many kilometers, from any other data availability zone, although all are within the 100 kilometers range from each other. So जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे डेटा सेंटर्स रखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर, इनको कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर एक अवेलेबिलिटी जोन है। हो सकता है एक एक डेटा सेंटर 10 किलोमीटर दूर हो, पर सेम सिटी में सेम एरिया में है, तो उसको भी मैं उसी अवेलेबिलिटी जोन में काउंट करूंगा। डेटा सेंटर्स अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। Availability zone may be several data centers, but if they are really close together, they are going to be count as one availability zone. अगर डेटा सेंटर पास में रखे हुए हैं पर अलग अलग जगह पे है, they will call as one availability zone. So one availability zone could be 2 or 3 data centers that are all within say couple of miles of each other. That's why if there is a flood, it might take out all the 3 facilities, or it might take out the availability zone. ठीक है, एक availability zone 2-3 डेटा सेंटर्स का कलेक्शन होता है। अगर वो सब एक दूसरे के पास में है और कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज आती है, तो उससे एक डेटा सेंटर या 2 डेटा सेंटर या सारे के सारे डेटा सेंटर उड़ सकते हैं, तो उसका मतलब एक availability zone डाउन हो गया। ठीक है, then you will have another availability zone that will be 100 miles away, and if the flood is in one area, it is not going to affect the other area. So अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया, उसके कारण या उसके आसपास जो इशू हुआ, उससे सेकंड अवेलेबिलिटी जोन पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये डेटा सेंटर्स के अंदर का रियल फोटोज है। अगर आप देखोगे, यहाँ पे कैबिनेट दिख रहे हैं, उसको रैक कहते हैं। एक रैक में मल्टीपल कंप्यूटर्स रखे हैं। आप देखोगे जो एक स्लिट्स है, वो एक कंप्यूटर है। तो एक रैक के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर रहते हैं। There will be multiple rack in a data center. Now, the last topic is edge location. What is edge location and why it is used? So, अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े, region and availability zone. ठीक है, so data center, collection of data center is an availability zone. 3 or more availability zone creates a region. Edge location. This is a new type of machine or new type of data center, which is not used for generally any processing और डेटा स्टोरेज। इसका अलग ही काम है। ये एक्चुअल सर्वर्स रखे हैं अमेजोन ने अलग अलग लोकेशंस पे, बट वी आर नॉट कॉलिंग इट अवेलेबिलिटी जोन और डेटा सेंटर। हाउ मेनी ऑफ यू नो द कैशे? व्हाट इज कैशे? व्हेनेवर यू एक्सेस सम वेबसाइट, योर ब्राउजर इज क्रिएटिंग अ लोकल कॉपी ऑफ दैट वेबसाइट। जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, लेट्स से विकिपीडिया का पेज है, यहाँ पे कोई इमेजेस होगी, यहाँ पे कंटेंट लिखा होगा, राइट? यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा होगा। तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है? एक्चुअली में क्या होता है, ये एक कंप्यूटर है और एक हमारा कंप्यूटर है। ये हमारा लोकल कंप्यूटर है, और ये एक कंप्यूटर है जहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है, ये विकिपीडिया होस्टेड है। तो हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर से, हमारे लोकल कंप्यूटर से विकिपीडिया के कंप्यूटर या होस्टेड मशीन मशीन को हिट करते हैं और ये पेज की रिक्वेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा उसके बाद जैसे विकिपीडिया पे हिट किया, लेट्स से कोई भी आर्टिकल हमने सर्च किया महात्मा गांधी या कोई भी लीडर के बारे में, तो वो हमको पेज रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ पेज रिटर्न करेगा, वो HTML या कोई भी अलग अलग फॉर्मेट में होगा, PHP या HTML, तो वो आपको रिटर्न बैक करता है। तो कैसे करता है? ये पेज होगा, उसका इमेजेस होगा, इमेज मान लो 30 KB की है, ये टेक्स्ट सारे 10-10 KB के हैं।
तो एक के बाद एक कंटेंट या ये जो ब्लॉक्स है ये आपके लोकल में डाउनलोड होते रहेंगे। जब पूरा सब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपका ब्राउजर पे वो पेज प्रॉपर्ली खुल जाएगा। ऐसा होता है। कभी-कभी आपने देखा होगा, आप ब्राउज़ कर रहे होते हो, कुछ चीज़ें खुलती है, कुछ चीज़ें नहीं खुलती है। फिर जब आप रिफ्रेश करते हो उसके बाद खुलता है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा छोटा-छोटा एरर दिखा देता है। ऐसा कुछ एरर दिखाता है। ऐसा होता है ब्राउज़र पे। तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये पूरा पेज लोड हुआ और इसकी कॉपी आपके लोकल के मशीन के अंदर ब्राउज़र के हिस्ट्री या ब्राउज़र के स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। अब आप जब वापस से रिफ्रेश करते हो, तो 2 चीज़ हो सकती है। या तो पूरा का पूरा कॉपी वापस लेके आओ, या लोकल में चेक करो, लोकल के अंदर कितना चीज़ें पड़ी हुई है और कुछ चेंज हुआ हो। मान लीजिए यहाँ पे एक नई इमेज आ गई हो, तो वो वेरीफाई करो कि क्या चेंजेस हुए हैं, उतने ही लेके आओ, बाकी चीज़ें लोकल से लोड कर दो। तो जब आपने पहली बार जब गए थे, जब आपके पास लोकल में नहीं था, तो आपने कितना डेटा डाउनलोड किया? 10, 20, 30, 40 एंड 70। पहली बार में कितना डेटा डाउनलोड किया आपने ब्राउज़र से? 70 केबी, राइट? इंटरनेट से आपने 70 केबी डाउनलोड किया। बट अगर आप रिफ्रेश करते हो, अब चेंज होके सिर्फ यहाँ पे 20 केबी की नया डेटा आया। तो आपको पूरा 90 केबी डाउनलोड करना चाहिए या सिर्फ 20 केबी जो चेंज हुआ है, उतना डाउनलोड करना चाहिए? सो ओनली 20 केबी डाउनलोड करते हैं, बाकी का 70 केबी आपके लोकल सिस्टम से रीलोड हो जाता है। इसको कहते हैं कैशे मैकेनिज्म। इसको कहते हैं कैशे मैकेनिज्म। ये चीज समझ आई या यस और नो? यस। ओके। सो दिस इज द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अब इसमें क्या होता है, डेटा बचता है। और हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर अभी आप एक इंडिविजुअल हो, ऐसे हजारों लोग वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, ये सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो सर्वर पे लोड आता है और डेटा ट्रांसमिशन का भी इशू है, मतलब बैंडविड्थ का भी इशू है। टू सेव द बैंडविड्थ एज वेल एज टू डिक्रीज द स्ट्रेस ऑन द होस्टेड मशीन, इसको होस्टेड मशीन कहते हैं, जहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है। तो ये क्यों करते हैं हम लोग? जिससे वेबसाइट होस्टेड मशीन पे लोड कम हो। दिस इज द कंसेप्ट। यही चीज अब आपने कोई वेबसाइट अमेज़न पे होस्ट करी है, आपने कोई सर्वर होस्ट किया है, कोई एप्लीकेशन होस्ट करी है, उसको आपको कैशे क्रिएट करना है। तो लोकल मशीन पे तो होगा ही होगा, बट अमेज़न ने थोड़ा और हेल्प किया आपको। वो क्या करता है, अज्यूम करो आपकी वेबसाइट यहाँ पे लंदन में वेबसाइट होस्टेड है। अब ग्लोबल बात करते हैं। अब लंदन में वेबसाइट होस्टेड है, दिख रहा है ये इमेज बीच में बकेट सी? अगर आपकी लंदन में वेबसाइट होस्टेड है, तो इंस्टेंट अभी क्या होगा, अभी सब बंदे को आपकी वेबसाइट पे हिट करेंगे, सारे बंदे आपकी वेबसाइट पे हिट करेंगे डेटा डाउनलोड करने के लिए। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे लोड बढ़ेगा। नाउ टू रिड्यूस द लोड, व्हाट वी आर डूइंग, to reduce the load, what we are doing, we are creating a local copy to nearby servers। आपकी वेबसाइट का एक लोकल कॉपी नियर बाय सर्वर में हम लोग कॉपी कर देते हैं। आपकी वेबसाइट का एक नियर बाय सर्वर में उसकी एक कॉपी बना देते हैं। वी क्रिएट अ कॉपी ऑफ ए वेबसाइट इन नियर बाय सर्वर। उससे क्या होगा, अब जितने भी लोग हैं वो नियर बाय सर्वर से लेके एक्सेस करेंगे। पहले 10 लोग इस वेबसाइट को हिट कर रहे थे, अब सिर्फ 5 सर्वर्स इस वेबसाइट को हिट कर रहे हैं और वो एक यहाँ पे लोकल कॉपी बना के रख रहे हैं या कैशे बना के रख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो भी यूजर्स आ रहे हैं उस लोकेशन में, वो इस एज लोकेशन पे या इस लोकल सर्वर को हिट करेंगे और ये लोकल सर्वर वेबसाइट उनको रिटर्न बैक कर देगा। सो इससे क्या हो रहा है, आपकी वेबसाइट पे स्ट्रेस कम हो रहा है। सेकंड, आपके यूजर का एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है। क्यों? उनकी लेटेंसी कम हो गई। यहाँ से यहाँ जाने में ओवर द इंटरनेट उनको डिले मिलता, बट यहाँ से वो नियर बाय
सर्वर्स पे जा रहे हैं तो उनको वेबसाइट बहुत जल्दी लोड होगी. Physical servers which are located to this physical servers located nearby many users are called edge locations. So ये Amazon अवेलेबिलिटी जोन से अलग होते हैं, ये सर्वर्स, ये डेटा सेंटर्स अलग होते हैं. These are the special type of servers which are installed across the world for only one purpose, to cache your data. To cache your data. Edge location are endpoint for AWS which you use for caching content. Typically, this consists of CloudFront, Amazon Content Delivery Network. So CloudFront and Content Delivery Network, what we have learned today, understand the difference between region, availability zone, and edge location. A region is a physical location in the world which consists of two or more availability zone. An availability zone is one or more discrete data centers, each with redundant power, networking, and connectivity, housed in separate facilities. Edge locations are endpoints of AWS which are used for caching the content. Typically, this consists of CloudFront, Content Delivery Network, CDN. We'll see this in detail. Any question? This was the basics of Amazon. Today we have learned about the physical servers, where and how, what we are calling the physical server. But after this, everything will be virtual. All the things which we are going to learn, all the service which we are going to study are virtual services.